Hello students, welcome back to e-learning classes of Purnamasi High School. I hope you all are well at your house and you all are studying well. As you all know, we have completed first 3 chapters from our science textbook, and today we are going to start with new chapter, that is chapter number 4, and name of the chapter is sorting materials into group. So let's start with the explanation. Come on page number 26 of your textbook. Name of our chapter is sorting materials into group. Now a question may arise, what are objects and what are materials? Are they both similar or not? These are some questions which can arise in your mind. So we are going to clear many of your doubts in this chapter. Let's start with 4.1 objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there are such a vast varieties of objects everywhere. This means that in our previous explanations of chapter, we have studied that there are plenty of varieties in our food and clothes. Not in just food and clothes, but there are many varieties in objects as well. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. इसका मतलब है कि हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा कि काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती है फूड में, क्लोथ्स में, पर खाली फूड और क्लोथ्स में वेराइटीज़ नहीं होती है. बहुत टाइप की वेराइटीज़ ऑब्जेक्ट्स में भी होती है. आप बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देख सकते हो, जैसे कि चेयर्स, टेबल, साइकिल, यूटेंसिल्स दैट इज़ बर्तन, खाना बनाने के बर्तन, स्टोन, वाटर, टॉयज़, ये सारे अलग अलग टाइप के क्या हैं ऑब्जेक्ट्स. और these objects have different shapes, colors and uses. You can see in figure 4.1. As I said, there are many objects around us and all these objects are of different size, shape, color and of different uses. For example, if you see ball is of round shape with many different colors and ball is used to play. Similarly, round shape के और भी बहुत सारे objects हो सकते हैं जिसके अलग अलग uses, shape और color हो. Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber, ball, football and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange and an earthen pitcher, that is ghada. Now, if you look around you, you will find many objects as I said, but if you collect the objects of round shape or if you name the object which are of round shape, you can see fruits like apple, tomato, orange, ये सब कैसे होते हैं राउंड एंड शेप. अगर आप देखोगे बॉल है, फुटबॉल है, मार्बल होता है, वो भी कैसा शेप का होता है, राउंड शेप का. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर्स में या अलग अलग टाइप के शेप्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं. When we did chapter 1, we understood that if we are going to prepare some food items, we need ingredients. अगर हमें कुछ खाने की चीज़ बनानी है तो हमें एक या एक से ज़्यादा ingredient चाहिए होते हैं. Similarly, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक या एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया जा सकता है या यूज़ किया हुआ हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें राइस बनाना है तो राइस के लिए हमें क्या चाहिए, राइस भी चाहिए और उसके साथ साथ पानी, नमक और ये भी चाहिए. तो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ किया है.
एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट में हम पेंसिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप लोग देखते हो कि पेंसिल में रबड़ भी होता है, वहाँ पे थोड़ा सा स्टील भी यूज़ किया होता है एग्जैक्ट रबड़ के नीचे, और पेंसिल किससे बनी होती है? वुड से। तो मतलब एक या एक से ज़्यादा मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। An object is a thing that is made of one or more material. ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ है जो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके बनाया जाता है। As I said, object can be made of one material or more than one material. If you look at the first picture, you will see chair. An object could be made up of one material. ये जो चेयर है वो सिर्फ वुड से बनी हुई है, तो उसमें सिर्फ एक ही मटेरियल यूज़ हुआ है। Whereas if you see second picture that is of pencil, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, that is rubber, metal, wood and graphite, that is पेंसिल की पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि मटेरियल मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक या एक से ज़्यादा मटेरियल भी यूज़ होता है या हो सकता है। I hope now you all are clear what object means or what is object. Moving ahead, suppose we are looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं जो हम खा सकते हैं, तो जितने भी नाम आप लोगों ने चैप्टर 1 के टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 में लिखे हैं वो सब उसमें इंक्लूड होंगे या हो सकते हैं। We might also find that some of those round shaped objects are just listed out are also in this group. मतलब अभी अभी जो राउंड शेप ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की वो भी एडिबल है या आप उसे खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, टोमेटो एंड सो ऑन। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. मतलब अब हमें एक ग्रुप बनाना है जिसमें हमें अलग अलग नाम लिखने हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जो प्लास्टिक से बने हुए हों। बकेट्स, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects are find a place in this group. मतलब प्लास्टिक से बने हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि बकेट दैट इज़ बाल्टी, लंच बॉक्स जो आप टॉयज़ से खेलते हो वो टॉयज़, वाटर कंटेनर दैट इज़ वाटर बॉटल्स, देन पाइप एंड मैनी मोर। ये सारे कौन से ग्रुप में आ सकते हैं? ऐसे ग्रुप में या ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो प्लास्टिक के बने हुए हों। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। बहुत ऐसे अलग अलग वेज है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बता सकते हो। On the basis of their shape or the material they are made from. वो अलग अलग वेज कौन से हो सकते हैं? या तो आप उसके शेप के बेसिस पे उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या आप उसकी क्वालिटीज़ पे या मटेरियल्स पे ऐसे आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ग्रुप में। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर शेप में जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हों उसका ग्रुप, राउंड शेप में आते हों उसका ग्रुप, प्लास्टिक वाले हो उनका ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें आयन हो। सो देयर आर मेनी वेज टू डिफ्रेंशिएट द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए हो सकते हैं। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton paper, mud or soil. Can you think of more examples of materials? मतलब कि जो materials हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन पेपर एंड सो ऑन। Now let's see some objects made up of different materials. Table, chair. Materials used in making table and chairs are wood, plastic, iron. अब हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या वो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया गया हो। टेबल और चेयर बनाने के लिए मेनली मटेरियल यूज़ होता है वो है वुड,
प्लास्टिक या आयन, यहाँ तो चेयर वुड से बनती है या प्लास्टिक की चेयर होती है या फिर आयन की। नेक्स्ट इज टॉयज़। टॉयज़ आर आइदर मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक और पेपर। नेक्स्ट इज शूज़। शूज़ आर मेड अप ऑफ लेदर। एक ही मटेरियल यूज़ होता है शूज़ बनाने में, वो है लेदर। क्लोथ्स, जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, क्लोथ्स बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, कॉटन, सिल्क, नायलन, पॉलिस्टर। टम्बलर, आइदर ऑफ प्लास्टिक और ऑफ ग्लास। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स कैन बी ऑफ प्लास्टिक, iron, aluminium as well as steel. Pen, pen is made up of plastic as well as metal. ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। आई होप नाउ यू आर क्लियर्ड विथ ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर to prepare this object. Activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. मतलब आप लोगों को बाहर जाना है और बाहर जाके आप जितने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो आपको कलेक्ट करने हैं, या तो आप घर से भी ले सकते हो। स्कूल तो आप आ नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ कोविड, सो स्कूल से तो आप कुछ नहीं ले सकते हो। What will we have in our collection? क्या क्या हो सकता है हमारे कलेक्शन में? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, डस्टर, रबर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट। हमारे कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। थोड़े बहुत एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि चॉक है, पेंसिल है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर मतलब हथौड़ा, नेल मतलब कील, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट। Some examples are continued on page 27 as well, like matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. मतलब आपकी उस लिस्ट में मैच बॉक्स, माचिस की तीली का बॉक्स, सॉल्ट, जैसे मैंने आगे बोला था एडिबल चीज़ें भी हो सकती है, पोटैटो, ये सब भी इंक्लूड हो सकता है। आप ऐसी चीज़ें भी सोच सकते हो जो आप घर पे या क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते हो, लाइक वॉल्स, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर एंड सो ऑन. Separate all the objects from this collection that are made up from paper or wood. अब आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से पेपर के बने हुए हैं, कौन से वुड के बने हुए हैं. दिस वे वी कैन डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप. और इसी तरह हम सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. One group has the object that are made from paper or wood, while the other group has the object that are not made up of these materials. एक ग्रुप में सिर्फ वो सामान होगा जो सिर्फ और सिर्फ पेपर और वुड से बना हुआ है, और दूसरे ग्रुप में वो सामान होगा जिसमें पेपर और वुड बिल्कुल भी नहीं है. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. और ऐसे ही हम खाना बनाने की चीज़ों को भी डिफ्रेंशिएट या फिर डिवाइड कर सकते हैं. Let us be a little more systematic. अब हम थोड़ा और सिस्टमैटिक काम करते हैं. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one is made up of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. Like, to make it systematic, you all have to note down the object you have collected in table 4.1 and the material of that object. इसमें आपको अगर लिखना है तो मैंने जो आगे वाली स्लाइड में आपको ऑब्जेक्ट और मटेरियल उनके बारे में बताया था, उसमें से आप कोई भी 2 फिल कर सकते हो. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In case, discuss with your friends, teachers, parents to identify the materials. कोई ऐसे objects हो सकते हैं जिसके materials आपको शायद ना पता हो, तो अगर नहीं पता है तो you can take help of your family, friends, teachers and so on. If you look at table 4.1, 2 examples आपको दिए हैं, that is plate.
मतलब थाली। मटेरियल प्लेट बनाने के लिए जो लगा होगा वो है स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर। या तो फिर वो प्लेट जो है वो स्टील की होगी, या फिर वो प्लेट कांच की होगी, या फिर वो प्लेट प्लास्टिक की होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ पेन। पेन या तो प्लास्टिक की होती है या फिर मेटल की होती है। अब इधर जो 2 स्पेस खाली है वहाँ पे आप खुद पेंसिल से आगे वाली स्लाइड में से देख के इसमें लिख सकते हो। Now, talking about activity 2, table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in the column 1 that are known to you. Now, try and think of everyday object you know that are mainly made up of these materials and list them in column 2. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। मतलब अब आपको क्या करना है, मटेरियल के नाम आपको दिए हुए हैं, आपको उस मटेरियल में से कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है वो लिखना है। जैसे वुड है तो वुड खाली चेयर या टेबल बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है वुड से, जैसे कि यू कैन से चेयर, टेबल, बेंचेस, देन बुलक कार्ट, प्लॉ, ये सारी चीज़ें वुड से बनती है। नेक्स्ट इज़ पेपर। तो पेपर सिर्फ बुक्स में यूज़ नहीं होता है, न्यूज़पेपर भी पेपर से ही बनता है, नोटबुक्स, देन टॉयज़, कैलेंडर्स। टॉयज़ एज एन अगर जब आप क्राफ्ट करते हो तो उसमें आप अलग अलग सी चीज़ें बनाते हो, दोज आर मेनली मेड अप ऑफ पेपर। अब लेदर है तो लेदर की भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल शूज़, बेल्ट्स। देन इट्स प्लास्टिक, हमने आगे पढ़ा प्लास्टिक की भी बहुत सारी चीज़ होती है, बॉल हो सकता है, प्लास्टिक की बकेट होती है, प्लास्टिक के मग्स होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती है। नेक्स्ट इज़ कॉटन। कॉटन से भी बहुत सारी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लोथ्स। नाउ यू आर गोइंग टू थिंक एंड राइट सम ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ दीज मटीरियल्स। और नीचे जो स्पेस खाली है वहाँ पे आप कोई भी मटीरियल का नाम या फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे लिख सकते हो। What do you find from these table? अब ये दोनों टेबल को हम अगर देखें या ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चलता है। First we grouped object in many different ways. We then found that objects around us are made up of different materials. सबसे पहले हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट किया या डिवाइड किया। उसके बाद हमने देखा कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। At times an object is made of a single material. An object could also be made up of many material. हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट या तो एक मटेरियल से भी बन सकता है या तो बहुत सारे मटेरियल से भी बन सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और फिर हमने देखा कि एक ही मटेरियल बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। What decides which material should be used for making any given object? This means अब ऑब्जेक्ट जो है उसे बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है वो हमें कैसे पता चलता है। It seems that we need to know more about different materials. इसका मतलब है ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें मटेरियल्स के बारे में और पढ़ना ज़रूरी है या पढ़ना पड़ेगा। So my dear students, this is all for today's explanation. In our today's video, we understood about objects, materials, different types of groups and so on. In our next video, we are going to study in detail about materials. So till then, I want all of you to read the chapter. जहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ा है या जहाँ तक हमने चैप्टर समझा है, आई वॉन्ट कि आप सब वहाँ तक एक बार ये चैप्टर पढ़ें। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फर्दर एक्सप्लेनेशन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप कंप्लीटिंग योर नोटबुक्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।